یہاں رخ کرتے ہیں گجرات کا۔ گجرات میں لوکل صحافت کے بانی روزنامہ جذبہ کے مینیجنگ ایڈیٹر راجہ طارق محمود کی یاد میں گجرات پریس کلب کے زیر تمام تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے ممتاز بزنس مین، سیاست دانوں، تاجروں، وکلاء، صحافیوں اور ان کے قریبی دوستوں سمیت ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی اور صحافتی خدمات پر راجہ طارق محمود کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ ان کے صاحبزادے راجہ تیمور طارق کی دستار بندی بھی کی گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جہاں پر گجرات میں سیاست، شہری بہادری سمیت ہر میدان میں نامور شخصیات نے اپنا نام پیدا کیا، وہاں پر راجہ طارق محمود نے گجرات میں صحافت میں اپنا نام پیدا کیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں گجرات سے آفتاب راٹھوڑ کی اس رپورٹ میں۔ جی، گجرات میں لوکل صحافت کے بانی روزنامہ جذبہ کے مینیجنگ ایڈیٹر راجہ طارق محمود مرحوم کی یاد میں گجرات پریس کلب کے زیر اہتمام تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے ممتاز بزنس مین، سیاستدانوں، تاجروں، وکلاء، صحافیوں اور ان کے قریبی دوستوں سمیت ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی اور صحافتی خدمات پر راجہ طارق محمود کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ ان کے صاحبزادے راجہ تیمور طارق کی دستار بندی بھی کی گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جہاں پر گجرات میں سیاست، شاعری، بہادری سمیت ہر میدان میں نامور شخصیات نے اپنا نام پیدا کیا ہے، وہاں پر راجہ طارق محمود نے گجرات کی صحافت میں اپنا نام بنایا اور وہ لوکل صحافت کے بانی تھے اور اپنی گجرات میں پہلی بہترین صحافی کا ایوارڈ بھی ملا اور ہر شعبے میں ان کی بہترین صحافت کی وجہ سے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی جو سنہری حروف میں لکھی جا سکتی ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ راجہ طارق محمود نے صحافت میں رزق حلال کو ترجیح دی اور محنت اور ایمانداری سے اپنے کام کو نبھایا، جس کی وجہ سے وہ ہر حلقے میں مقبول تھے۔ مقررین میں ممتاز بزنس مین حاجی الیاس، شیخ خاور رفیق، رائل فین، امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر ضیاء اللہ ایڈوکیٹ، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار گجرات چودھری نثار احمد ایڈوکیٹ، ڈاکٹر اعجاز بشیر، الحاج محمد افضل گوندل، ملک محمد حسین اوان، چودھری پرویز اقبال، نگت اقبال قریشی، چودھری علی ابرار جوڑا، محمد یونس ساکی، راجہ طارق محمود، راجہ تیمور طارق، پروفیسر شفیق خیال، عارف گجراتی، خادم علی خادم، افتخار بھٹا، داؤد خان، انور شیخ، محسن بشیر، لالا جی سعید اقبال مرزا، ڈاکٹر اسامہ طلعت اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا راجہ طارق صاحب گجرات کی ان زرخیز نامور ہستیوں سے ہیں جنہوں نے زمین کے بہت دور اندر تک جانے کے بعد اپنے اوپر خوبصورت گل و گلزار چھوڑے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ گجرات کے پہلے صحابی تھے جنہوں نے گجرات سے ایک روزنامہ کا جو اجرا ہے اس کا کیا، اور یہ جو اعزاز ہے انہیں کے حصے میں آیا۔ وہ اپنے فیلڈ میں پائنیئر تھے اور شاید ان کے کوئی لاشعوری کوشش میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کم دیا ہے، تو انہوں نے بڑی چھوٹی عمر سے یہ تمام ان کاموں کا آغاز کیا اور اپنی عمر میں ہی کی تھا ایک مثال محنت میں عظمت کی وہ پہچان تھا، محنت میں عظمت کی وہ پہچان تھا، تو پیکر تھا صدق و صفا و وفا کا، تو پیکر تھا صدق و صفا و وفا کا، باکردار خوش گفتار وہ با ایمان تھا، وہ مثبت صحبت کا تھا پاکدار، وہ مثبت صحبت کا تھا پاکدار، قلم کی حرمت کا وہ نگہبان تھا، قلم کی حرمت کا وہ نگہبان۔ ہاتھ میں ہی واپس لوٹ جاتا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے
मैं शरीफ लोग का मुझे तो लिखना भी नहीं आता थी, मैं तो 9th क्लास में पढ़ता हूँ, नहीं तुम आया करो मेरे पास। मैं कहा ठीक है। मैं राजा साहब के पास जाना शुरू किया तो छोटे न्यूज़ देना शुरू किए, तो उन्होंने मुझ पर जो रस्ते शक्कर रखा, मैं आज तक नहीं वो भूल सकता वो मंजर। तो उसके बाद मेरी तकदीर जो है ना वो आपके सामने खुल दी। अल्लाह ताला ने मुझे जो भी काम होता है सब अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, इंसान की मर्जी से नहीं होता। इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, एक नेकी का और एक बदी का। तो राजा साहब से पहली मुलाकात में उन्होंने ये कहा था, बेटा रिज़्क़ हलाल कमाना है ना, इस शोबे में बहुत मुश्किल है, तुमने अगर ये लाइन पकड़नी है ना, तुम इस लाइन पे आ जाओ। तो मैं उनके नक्शे कदम पर चलता रहा, जो मुझे वो लाइन देते रहे। 91 में मैंने जब आगाज़ किया जज्बा में, तो वहाँ पर मोहम्मद यूनुस साकी साहब से भी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा, महमूद साहब आप जो है ना कांग्रेस सपोर्टर बन गए। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसके बाद जज्बा में मुझे रेगुलर काम करना शुरू कर दिया। 92 के बाद मेरा वोट, मुझे राजा साहब ने कहा आप लोग हो जाए, जो काम करेंगे आप अच्छा काम कर सकेंगे, वहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ चला गया। 93 में 2002 के बाद मैं गुजरात वापस आया। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने दस्ते शक्कर फेर रखा, जिनका सिस्टम सिलसिला चलता रहा, तो आज उनकी बड़ी कमी महसूस हो रही है। अगर मैं समझ लो अगर वो 91 में दस्ते शक्कर ना रखते तो मैं किसी फैक्ट्री में काम करता होता या कोई और कारोबार करता होता। अगर मैं बस नहीं कहूँगा कि उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। रोज़नामा जज्बा की वजह से आज मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, क्योंकि अगर मैं रिपोर्टर ना होता, जज्बा अखबार में ना होता, तो गुजरात का सदर भी ना होता। तो मैं अपने तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यूनुस साकी साहब भी बड़ी मुझसे शफकत करते हैं और भाइयों की तरह मुझे समझते हैं। राजा तैमूर तारक साहब ये भी मुझे भाइयों की तरह समझते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने साथियों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, राजा साहब का नाम रोशन करेंगे और इसके हलाल भी इस सिस्टम में चलते रहेंगे। थैंक यू। तो इससे ज़्यादा मेरे वालिद साहब का इखलास की गवाही कोई नहीं, जो इखलास मैं आज आप लोगों में देख रहा हूँ। तो मैं आपका इसके इंतहाई दिल से शुक्रगुजार हूँ। इखलास और मोहब्बत से आप घंटों यहाँ पे बैठे हैं। इंसान सोचता तो है कि बुजुर्ग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन यकीन माने जब वो दुनिया से जाते हैं तो फिर इस बात का एहसास होता है कि वो वाकई दुनिया से चलेंगे। ये एक ऐसा ख्याल आता था रातों को कई दफ़ा कि इससे आगे इंसान की सोच खत्म हो जाती है। हम 3 भाई हैं और यकीन माने जो बड़े भाई हैं उनकी उम्र 37 साल है, राजा उम्र साहब है मेरी 35 साल माशाल्लाह की उम्र है, मेरी उम्र 33 साल है। हम तीनों भाई अपने वालिद साहब को ऐसे देखते थे जैसे 4 साल के बच्चे का दिल अपने वालिद के लिए मचलता। उनको देख के, उनके चेहरे को देख के मुस्कुराता है और उनके अफसरदा चेहरे को देख के अफसरदा हो जाता है। हम बचपन से उनकी आँखों के, उनके चेहरे के जज्बात से इजहार से ही सीखते हैं। वो इतनी नरम तबा इंसान थे कि वो ज़बान से कम और इशारों से ही सारी बात समझा देते। उनके गुस्से के एक्सप्रेशन भी हमें याद है, उनके प्यार के एक्सप्रेशन भी हमें याद है। हमें जिस तरह बाकी तुलबा होते हैं बचपन में शरारतें करते हैं और पढ़ाई लिखाई का कोई ज़्यादा शौक नहीं होता, हम भी वैसे ही थे। लेकिन सलमान भाई भी करते हैं, उमर साहब भी करते हैं, उनको दुआ करके ये बात कहता हूँ कि अगर हमने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया, जहाँ हमने अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इम्तियाज़ी नंबर हासिल किए, तो सिर्फ अपने वालिद को खुश कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें कामयाब देखना चाहते थे। और उनकी वो उम्मीद, उनका वो मुस्कुराता चेहरा और उनकी वो लगन, वो हमें रातों को सोने नहीं देती थी। हमने सुबह उठना, स्कूल के लिए तैयार होना, तो हमने देखना कि वो हमारा यूनिफॉर्म इस्त्री कर रहे। वो हमें अपने हाथों से अपने बुक पे लाते थे, हमारी किताबें रखी करते थे। तो उनकी ये मोहब्बत और लगाव हमें क्लास में बैठे याद आती थी कि हमारे वालिद ने हमें किस तरह प्यार करके स्कूल भेजा
और हमने उनको मायूस नहीं करना। सारे भाइयों ने बड़ी मेहनत की, यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, बड़े भाई इंग्लैंड से पढ़े हैं, राजा उमर साहब कायदा यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इन्होंने आज़ाद कश्मीर के बोर्ड में टॉप किया और असिस्टेंट कमिश्नर बने। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से MBA किया, मैं न्यूज़पेपर में आ गया। इस तरह सिस्टर है, डॉक्टर है, MPhil किया, मतलब एक लंबी एक दास्तान है इस चीज़ का। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे वालिद साहब का वो प्यार और वो खलूस था, जिसकी बदौलत हम इस काबिल हुए कि आज हम आपके सामने खड़े हैं। जब वो दुनिया से चले गए तो मैं बड़ा 2-3 दिन इस तरह अपने आप को महसूस करता जैसे कि हमारा जिंदा हो। मेरी बेटी पैदा हुई 14 दिसंबर को और 11 दिसंबर को अबू का इंतकाल हुआ। जब वो पैदा हुई तो मैं हॉस्पिटल में था, रात को, और मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रहा था। और नमाज के दौरान मेरे दिल में ख्याल आया कि अब्बू हमें अकेला छोड़ के नहीं गए, वो हमें अल्लाह ताला से कनेक्ट करके गए और नीचे आप लोगों से कनेक्ट करके गए, जिनका अल्लाह ताला हामी नासर हो जाए और हज़ारों दोस्त अब्बू के हों। मैं समझता हूँ हम बिल्कुल लावारिस नहीं हैं, हम बिल्कुल इस तरह के नहीं हैं कि जो शायद अपने आप को समझते हैं कि अब हमारा क्या बनेगा। इन दो चीज़ों की मौजूदगी में हमें हर वक्त हौसला और हिम्मत आती है कि हम किस तरह से काम करें, किस तरह से हमें आगे चलना है। मैंने अबू से एक दफ़ा पूछा, अबू जी आपने जज्बा अखबार का नाम जज्बा क्यों रखा? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक गज़ल सुनता था, वो उस गज़ल से मैंने ये नाम रखा। मैंने कहा वो कौन सी गज़ल थी? तो फिर अबू ने मुझे 2 शेर सुनाए कि ऐ जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल की तरफ 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। इस तरह के जज्बात और एहसास रखने वाले वो इंसान थे। उन्होंने ज़िंदगी में, मैं समझता हूँ जितने भी औसाफ किसी इंसान में हम बयान कर सकते हैं वो उनमें हर लिहाज से मौजूद है। ना वो किसी की गिबत सुनते थे। इस आपको हुजूर सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुरसलीन की बारगाह आलमी पेश करने के बाद अपने उस्ताद मोहतरम राजा तारक महमूद साहब अल्लाह पाक कबूल फरमा, अल्लाह पाक उनके पिसरान को सब्र जमील अता फरमा और उनके मिशन को जारी व सारी रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक इस सब्र जमील अता फरमा कर उन्हें भी राजा तारक महमूद के मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। हाँ, जो खातम साहब आफ्ताब राठौर, कॉरस्पॉन्डेंट गुजरात।